हेलो। हेलो अमित जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। यू हैव स्पेयर्ड योर प्रीशियस टाइम फॉर अस, एंड सर इट्स अ नीड टुडे, दैट्स व्हाई वी आर डिस्टर्बिंग यू इन सच अ टाइम, एंड थैंक यू फॉर दैट सर। It is my pleasure to be part of this. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने इंडिया के जो श्रोता हैं और हमारे जो दर्शक हैं उनको वरिंदर भुल्लर जी के बारे में बताना चाहूंगा। आप 29 ईयर्स 29 साल से आप कनाडा में हैं, और अगर इनके बारे में बताएं तो मैं याद नहीं रख सकता, तो मैंने नोट आउट कर लिया कि आपकी शख्सियत जो है वो कितनी बड़ी है। आप मास्टर ऑफ साइंस हैं and working with a world leading pharmaceutical company over there at Canada, Alberta में। और आपका बिजनेस एक्सपीरियंसेस हैं, आपका वॉलंटियर वर्क है, सर्व्ड एज ए पब्लिक मेंबर ऑफ अल्बर्टा प्रोविंशियल एडवाइजरी काउंसिल फॉर कैंसर फॉर 6 years, served as a member of Edmonton Transit Advisory Board for 2 years, served as Children Program Director for the Meadow Community League for 2 years, served as Secretary and Language Director for Punjabi Culture Association over there at Canada, founding member and serving as a President of Green Scholars of Alberta. For sir, बहुत 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 सारा planted thousands of trees in Meadows area, organized community cleanups in the Meadow area, organized women empowerment days where thousands of ladies from the Meadow community participated. Worked with Alberta government to include Punjabi in the school curriculum, different levels. Lead the committee to work with the school board and Alberta government to bring Kogai program in one of the Melwood schools. Served as proctor and chief proctor during my years in the very nice sir. बहुत served as secretary and vice president on parent teacher association and local advisory committee, providing you also provide coaching to the soccer team in community soccer leagues. Yes, we do. Yeah. Assisted in highlighted and resolving many traffic issues in Meadows and other neighboring communities. Awareness programs आपने किए हैं, आपने thousands and thousands लोगों की help करी है during COVID, और ट्रक लोड ऑफ वार्म क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं और पेंडेमिक के दौरान। और अगर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, इफ वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, सर्व्ड 4 terms ऑफ एडमॉन्टन मिलवुड्स Beaumont Liberal Constituency Association as Vice President and Secretary under the leadership of MP David Kilgour. Served 2 terms as a secretary for Edmonton Mill Creek under leadership of Ginny Jowasdiski. Actively involved in numerous campaigns where he has served as a chairperson for door knocking, telephone conveying and election day readiness of many campaigns. आपको सर क्वीन सेंटिनल मेडेलियन मिला हुआ है सर। Yeah, that was for my volunteer work involvement in the community. That's what was recognition. सर बहुत बहुत आपने सब लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, you have done a lot. आपने बहुत कुछ किया है। I love it. I think it's my genes. My parents, my mom was one of the person. If there was ever a rain and someone come in for shelter, she would love to host them. So इसीलिए I think मेरे parents की तरफ से मुझे ये विरासत में ही मिला है। Inherit हुआ है आपको, जीन्स में है। Yeah. सर आपसे आज बेसिकली बात करने का जो मेन रीजन रहा, सर टॉकिंग टू यू इन हिंदी इज बिट कंफर्टेबल टू यू सर? किसी भी लैंग्वेज में कर लो, चल जाएगा, मिक्स चल जाएगा। मिक्स चल जाएगा सर, तो मैं भी ऐसे ही करूंगा सर। सर बेसिकली आज आपसे बात करने का जो रीजन रहा है वो ये है कि एक फार्म बिल इंडियन गवर्नमेंट लेके आई, उसके बाद में एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ। जो फार्मर्स हैं फ्रॉम पंजाब हरियाणा, उनके बच्चे यहाँ कनाडा में और यूएस में हैं, और एक अलग से
चल गया यहाँ पे कि वो अभी उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो लोग कौन हैं, कैसे उनको प्रोटेस्ट को फंडिंग हो रही है, उस सब बारे में। तो सर सबसे पहले माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फर्स्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू वेयर यू स्टैंड ऑन फार्म बिल। आपका अपना स्टैंड क्या है सर? आई थिंक जो फार्म बिल्स हैं वो अनफेयर हैं फार्मर्स के लिए। मेरा जो बिलीफ है, मैं समझता हूँ कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी, वो मोदी जी ने जो इलेक्शन जीता था वो इस प्रॉमिस पर जीता था कि वो स्वामीनाथन रिपोर्ट लेकर आएंगे। जो फार्म बिल है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट की कंप्लीटली अपोजिट है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो क्रॉप्स की वैल्यू है, उनकी प्राइस है, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट की जाएगी। वो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आज से 70 साल पहले अगर आप 2 क्विंटल कणक बेचते थे तो आपको 1 तोला सोना मिल जाता था, और अब जी अगर आपको 25 क्विंटल कणक बेचनी पड़ेगी अगर आपने 1 तोला सोना लेना है। इसलिए इन्फ्लेशन जो है वो क्रॉप्स की प्राइस की इन्फ्लेशन उतनी नहीं बढ़ी है जितनी कि बाकी उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं। अगर आप ट्रैक्टर की कीमत देख लो, अगर आप फर्टिलाइजर्स की देख लो, अगर आप उनके जो पेस्टिसाइड्स है उनकी कीमत देखते हैं तो उनकी कीमत में बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है। और स्वामीनाथन रिपोर्ट ये कहती है कि जितनी उनका खर्च आता है उसका उनको 150% जो है टाइम एंड हाफ उसकी प्राइस मिलनी चाहिए। और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बजाय मोदी जी कह रहे हैं कि हम मंडी को ओपन कर रहे हैं जिसमें कोई भी कितनी भी प्राइस पे आकर कोई चीज ले सकता है। सो अगर जो कंट्रोल जो लूज कर लेंगे तो वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें जो बिजनेसमैन है वो तो सस्ते से सस्ता खरीदना पड़ेगा। और किसान जो है एक ऐसा बिजनेसमैन है जो रिटेल में खरीदता है और होलसेल में बेचता है। बाकी सभी बिजनेसमैन जो हैं वो होलसेल में लेते हैं और रिटेल में सेल करते हैं, और उनके पास वो कैपेसिटी होती है वो स्टोर कर सकते हैं। किसान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी क्रॉप अगर उनको पूरा कीमत नहीं मिल रहा तो वो स्टोर कर लें। इसलिए जो गवर्नमेंट को उसमें इन्वॉल्व रहना, जो मंडी सिस्टम है उसका इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है ताकि वो प्राइस को रेगुलेट कर सकें, जो एमएसपी है उसकी गारंटी फार्मर्स को मिल सके। जी जी जी। तो आप जी, पर सर अभी जैसे आपने अभी बोला कि ये उनको मंडी समिति को खत्म करने वाली बात हो रही है, या वो सर अगर मैं बात करूं, अभी हमने बात करी कि आप 29 ईयर से कनाडा में हैं। सर आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग दैट अभी आप चाह रहे हैं कि इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से वही मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ग्रेन्स एंड ग्रोसरीज, बट वाइल पीपल, वेस्टर्न पीपल जिनके बारे में हम बात करें, लाइक यू एंड पीपल लिविंग इन यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज, they are enjoying the luxury of Walmart, 7-Eleven, Whole Foods Market, Costco and all. There are checks and balances are in place. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर एक बार सुपर स्टोर और वॉलमार्ट और कुछ और स्टोरों ने मिल करके जो ब्रेड की प्राइस है वो फिक्स कर ली कि हम इतने से सस्ती नहीं बेचेंगे। तो इसलिए वो सारों ने एक वैसे यूनियन की तरह बना करके एक ब्रेड की प्राइस को फिक्स कर दिया। जब 15 साल बाद उसका पता चला कि वो ब्रेड की प्राइस फिक्सिंग करके उन्होंने इतना प्रॉफिट लिया है तो उनको बहुत सा जुर्माना भरना पड़ा। सो ये जो रेगुलेशन है वो इंडिया में फॉलो नहीं किए जा रहे, और उसमें दैट इज द प्रॉब्लम। जो उसकी इन्फोर्समेंट है या उसका जो लॉ है, वी कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। The people in Western culture I think majority of the people are honest. They're very committed to their country, and so are the Indian people too. I think they are very committed to their country. Yeah. The problem is the system there is not established, which gives the fairness to the farmers there. So I think, and then the farming in here is slightly different way. It's a much bigger land. It's not that condensed land where they do farming. And the problem with
in here is also is the farming is subsidized business by the government. So farmers are not surviving without the government help in here either. And then the government is not helping the farmers in India either. So that is the problem. Either you provide them the help or leave them, give them the fair price. And that's what the farmers are asking. They just need a guaranteed price. So anybody can buy it. So farmers are not stopping the businessmen to come and buy from the traditional mandi. So all those Reliance companies or Adani groups or Adani group, anybody who wants to come, they can come to the existing market where they are, and they can buy it by paying the price which is established by the government, and that's really what they're asking for. They're not saying that we won't sell it to them. Yeah. मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि अभी तक इस बात का किसी ने जिक्र नहीं किया। अभी सर आपने ये बहुत अच्छी बात कही है कि अभी तक हम ये बोल रहे हैं कि किसान की मर्जी है वो अडानी या अंबानी को बेचे या पब्लिक मार्केट में बेचे, हमने उसको फ्री कर दिया। सर ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि अडानी और अंबानी को फ्री कर दीजिए कि वो कहीं से किसी भी किसान से खरीद लें और कितने ही किसानों से खरीद लें। सर इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट आपने जो बोला है अभी ये कि उनको अलाउ कर देना चाहिए कि वो किसी भी मंडी में जाके कभी भी खरीद सकते हैं और उनके पास में है। या मंडी वो रहनी चाहिए और एमएसपी गारंटी चाहिए, उससे कम नहीं खरीदेंगे, उससे कम नहीं खरीदेंगे, उससे कम नहीं खरीदेंगे और मंडी से खरीदेंगे। देयर इज नो इशू विद इट। बहुत बहुत बेहतरीन पॉइंट है सर, ये आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज बोली क्योंकि अभी तक जिस मुद्दे पे बात हो रही है वो बात ये हो रही है कि किसान को गवर्नमेंट कह रही है कि हमने किसान को खुली छूट दे दी है कि वो किसी भी मंडी में जाके अपना बेच सकता है रादर। और इसके अंदर भी कंट्रोवर्सीज आ गई हैं क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमारे हरियाणा में कहीं से भी बाहर से कोई आके किसान अगर बेचना चाहेगा तो दे विल नॉट लेट हिम सेल अपना उसका जो क्रॉप है वो अपने हरियाणा में बाहर से नहीं बेचना चाहेंगे। सेम इज द केस विद मध्य प्रदेश, उन्होंने भी ये कह दिया कि हम अपने यानी, और गवर्नमेंट कह रही है कि हम रादर दोनों तरफ बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी आ रही है बातें कि बीजेपी ही बोल रही है कि आप कहीं भी बेचें और बीजेपी के ही जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कह रही है कि हम बेचने नहीं देंगे अपने यहाँ पे। There's a big flaw in the bill. I think that this bill may not be constitutional even. ये हो सकता है कि बिल ही गैर संवैधानिक हो क्योंकि जो मंडी में खरीदने या बेचने का मैकेनिज्म है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में आता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चेंज कर रही है, वो उनके जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ही नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का फैसला ले रही है, लेकिन जो उसने अपील दायर की हुई है कि आप क्या ये बिल संवैधानिक है या गैर संवैधानिक, उस पर उन्होंने कोई भी फैसला नहीं दिया। जहां तक कि मांग उस फैसले की हो रही है और वो कमेटी के बना रहे हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग। जी जी बिल्कुल सर। तो आप गवर्नमेंट के बारे में जैसे अगर हम बात करें, so do you feel in any way कि the hostility and aggression shown by the government towards the farmer can be in any way justified? हम उसको justify कर सकते हैं जिस तरह गवर्नमेंट का बिहेवियर है अभी, वो आपको क्या लगता है? That's very rude. Actually, मैं आमतौर पर इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन मसलों में दखलंदाजी बहुत कम करता हूँ क्योंकि मेरे को इधर आए हुए इतने साल हो गए हैं। मैं कनेडियन सिस्टम, मैं चाहता हूँ कि कनेडियन सिस्टम कहीं खराब ना हो जाए। मेरा जो एनर्जी है वो आमतौर मैं वहाँ लगाता हूँ कि कनेडियन सिस्टम जो है वो अच्छा बना रहे, ठीक बना रहे, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ के बॉर्न हैं इसलिए। पर जब मैंने ये देखा कि उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वायोलेशन हो रही है तो मेरे से रहा नहीं गया कि जो किसान अपने हक की मांग के लिए पीसफुली दिल्ली को जा रहे हैं और रास्ते में उनकी सड़क को तोड़ दिया गया, उनके बैरिकेड सेट कर दिए गए, उन पर वाटर के जो कैनन है वो चलाए गए, उन पर जो आंसू गैस के गोले फेंके गए। जब ये सब कुछ हुआ तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। जब ह्यूमन राइट की वायलेशन चाहे वो कनाडा में होती है, चाहे वो इंडिया में होती है, चाहे वो अमेरिका में होती है, चाहे वो फलस्तीन में होती है, इजराइल में होती है, कहीं भी होती है, ह्यूमंस आर ह्यूमंस एंड वी आर ऑल वन फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू ट्रीट। अगर किसी भी इंसान को कहीं भी दुख पहुंचाया जाता है तो हमको उसके साथ करना हमारा एक जो है वो फर्ज होता है। सर अभी आपको क्या लगता है कि जैसे आज, सर मैं दो आपके सामने वो रख रहा हूँ
अभी एक प्रोस्पेक्ट ये बनता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट जिस तरीके से डील कर रही है, सभी गवर्नमेंट्स इसी तरह ही डील करती हैं, पहले भी होता रहा है, लेकिन पहले इंटरनेट नहीं था तो इस तरह लोगों को पता नहीं था। और दूसरे लोग कहते हैं कि इंटरनेट होने की वजह से लोग जागरूक हो गए हैं। जो दूसरा पर्सपेक्टिव ये आता है निकल के कि लोग बाग अब जागरूक हो गए हैं, पहले लोग जागरूक नहीं थे, पहले अवेयर नहीं रहते थे, तो लोग बाग अपने कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते थे और इस तरीके से वो बातें गवर्नमेंट कुछ भी करके निकल जाती थी और अब इसलिए होने नहीं दे रहे। सर, आपका क्या मत है इसमें कि आप किस तरफ बैठते हैं? सर, आई थिंक पीपल आर मोर अवेयर। जो इंटरनेट के जो है वो उसके साथ कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हुई है। पर दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ कि मैं किसी भी मतलब आई एम नॉट बिग फैन ऑफ इंदिरा गांधी और एनी अदर पार्टी, बट आई रिमेम्बर वन थिंग दैट शी सेड। उस समय जो है वो जो कम्युनिकेशन मीडियम जो मीडिया है उसके प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी जब मैं इंडिया में था। उन्होंने एक बार बोला था कि अगर मीडिया को प्राइवेटाइज कर दिया गया तो वो कारपोरेशन का गुलाम हो जाएगा। And I feel that way right now. There is a mainstream media which is controlled by certain industries or certain political parties. If people like you or other internet media काम ना करें ठीक तरीके से तो किसी की भी आवाज कहीं तक नहीं पहुंच सकती। So इसलिए जो बात है वो जो इंटरनेट जो स्मॉलर चैनल्स हैं वो सभी की बात को एक दूसरे तक फैलाने में हेल्प कर रहे हैं। जी सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे को एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बताया है मीडिया के लिए। सर, अभी आपने इंदिरा गांधी की बात करी तो सर एक लेफ्ट विंग और राइट विंग पार्टी वाली बात आ जाती है। सर, जो अभी आजकल जो चल रहा है, हमने ये देखा जो कि अलग नोशंस के पीछे छुपती है गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट के लिए अगर हम बात करें, चाहे पुरानी किसी भी गवर्नमेंट को, हर कंट्री के अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर इंडिया, हम बात करें कि अगर हम जर्नल देखें तो कहीं पे सर ऑर्डर के पीछे छुप जाती है। मतलब कोई भी एक्शन को वो अपने जस्टिफाई करने के लिए वो नाम दे देंगे कि ऑर्डर की वजह से, ड्यूटी थी हमारी उस वजह से, ट्रेडिशन की वजह से। आजकल एक नए शुरू हो चुके हैं, नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा तरीके से इस्तेमाल किया गया है, होली काउ को हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, मतलब इस्तेमाल होते देखा है हमने यहाँ पे। और सर मतलब मेरे को बड़ा दुख होता है, ब्लू स्टार ऑपरेशन, थंडरबर्ड, ब्लू स्टार, ये दो ऑपरेशन ऐसे हुए थे जहां पे ऑर्डर और इसके बारे में बात करके हमने उस टाइम पे भी देखा कि किस तरीके से कत्लेआम, कत्ले गैरत हुआ है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग होती है और कुछ नेता उन मॉब लिंचिंग करने वालों को माला भी पहनाते दिखाई दिए हैं जो वो जेल से छूट के आए हैं, और वो नेता जिनका एक अच्छा खासा नाम है। सर, आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? I think the block voting is very bad political strategy, and that is what is leading to all of this. Regardless of which political party is it, whether it's a Congress or it's an left wing or BJP right wing or whether it's India or US or Canada, every country political parties do the focus on the block voting, that this segment of the population have this many votes, and what can we do to convince them to vote for us? And that is what they are trying to do, and it's very sad. The election should be run on what is good for the overall society and overall country, not by a calculated move that by making this move we can convince 51% of the voters to vote this way, whether this is a wrong or right. And I certainly believe that most of the political parties know what they're doing is not right, but they just are focused on winning the election, not serving the public. There was a time when people come to politics to serve, but now I have seen in the Western world, actually, in India is different. In the Western world, they will come to power. There are parties like even in Canada. I'm sorry to say that there was a big V scandal
There was SNC scandal. That was the current ruling government that created it. So they were trying to help the corporations. And then what happens is after they are out of the politics, they become their consultants, and then they work with those governments, and then they would get the things done for them. So the corporations are controlling it, and then that's where the fundings are coming from, or some one group that is funding them, who they like to please by doing such an evil acts. Where I'm not even going to name those evil acts, and you had mentioned some of them already, which are part of it, and there's many more on top of it, and that's a very sad situation. Sir, the word funding you have just अभी आपने इस्तेमाल किया funding words का. सर यहाँ farmers protest के ऊपर भी सर एक conspiracy theory is going on that the Khalistan or Khalistani Sikhs or Khalistani loving Punjabis community are behind the farmers protest, and they are funding the farmers for the protest because they need a separate Khalistan, and they are the Tukde gang, and things are like going on over here. So what do you think from Canada point of view? You are living over there, the people, those who are there in Canada, are helping their parents and relatives. Are they मतलब वो क्या खालिस्तान के समर्थक हैं जो कनाडा के लोग हैं? One thing I would tell is, if anything, this farmers' protest had united the India. This movement is not from Punjab. This is from Punjab, Haryana, UP, Madhya Pradesh, people from Maharashtra. Even Shiv Sena is supporting this protest. So how can they say this is a Khalistani protest? And this is a really and then even actually people who have some beliefs of a separate state, they are saying don't even talk about it. This is the time to focus on the farmers' bill issue. And once this farmers' bill is over, we can talk about other things, whatever we need to. At this time, we need to just focus on those 3 bills and get them cancelled. And that is what the focus of this whole protest is. I don't think it has anything to do with Khalistan. If anything, I've never seen, I've seen pictures and I have heard from people who are in the field. There are people from the Muslim religion doing namaz. There are people from Hindu religion, they are doing havans. And there are Sikhs doing their part there. So it's जो ऐसे होमोजेनिटी जो है कभी भी इससे पहले मैंने नहीं देखी जितनी इकट्ठ अब देखा जा रहा है. और मेरा ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट को ये इकट्ठ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो ब्लॉक वोटिंग स्ट्रेटजी है वो उनकी फेल हो रही है, क्योंकि इसके साथ जो लोग हैं वो बहुत ही इकट्ठे हो रहे हैं. वो उस प्रिंसिपल पर आ रहे हैं जिस प्रिंसिपल पर इलेक्शन होने चाहिए. लोगों की रोज नामचा की समस्या क्या है, ये हमको देखना चाहिए कि रोटी रोजी की समस्या क्या है, किसी की विद्या की समस्या क्या है, एजुकेशन की समस्या क्या है, हॉस्पिटल्स की समस्या क्या है. अगर मैं थोड़ा सा फिर जाऊंगा प्राइवेटाइजेशन के बारे में. जहां पर भी प्राइवेटाइजेशन अब ये हुई है वो सब फेल हुए. एजुकेशन प्राइवेट हुई, स्कूलों की विद्या कितनी महंगी हो गई है, कोई आम लोग विद्या अफोर्ड ही नहीं कर सकता. हॉस्पिटल प्राइवेटाइज हुए, वो फेल हो गए. ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट हुई, वो फेल हो गई. और अब अगर एग्रीकल्चर प्राइवेट कर दिया ऐसे, तो मुझको डर लग रहा है कि एजुकेशन किसान ही फेल नहीं होंगे, आम जनता भी फेल हो जाएगी. क्योंकि जो प्रॉफिट मार्जिन है, अगर ये सारी मंडी जो 1 या 2 बिजनेसमैन के हाथों में आ जाती है तो, एंड जो अब लग रहा है वो ऐसे ही लग रहा है कि वो 1-2 हाथों में आने वाली है. और वो जो है रल मिल करके प्राइस फिक्सिंग की जगह जो अपना प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ाएंगे, और जो लोग खरीदने जाएंगे उनको जो आटा है वो बहुत महंगा हो जाएगा और करेंसी प्राइस कम हो जाएगी. और ये एक एग्जाम्पल भी है अभी इस फार्म बिल में, जो यहाँ पर जो मंडी खत्म हुई हैं वहाँ पर जो गेहूं की जहाँ धान की प्राइस है वो पंजाब और हरियाणा से ऑलमोस्ट आधी है या 2/3. सो अगर ऐसा ही बिहार का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, हाँ एग्जाम्पल लेते हैं, मध्य प्रदेश की ले लो, बिहार की ले लो, दोनों में ही है. बिहार जी बिहार में. हाँ जी.
जी। एक्चुअल में सर मेरी बात हुई थी, हमने इंटरव्यू किया था राकेश टिकैत जी का, और वो उत्तर प्रदेश में हैं और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी यही बात उन्होंने बोली थी कि अगर कि एक फार्म बिल आ गया तो उसके बाद में कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि किसान अपने खेत में मजदूरी करेगा, कि ये कंपनी वाले उसको ही मजदूर रखेंगे और वो अपने ही खेत में मजदूरी करेगा और उसको मजदूरी के पैसे से गुजारा करना पड़ रहा होगा। तो वो भी बहुत अच्छा इंटरव्यू था, हमने जब लिया था। तो सेम आप भी यही बात कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन होते ही तो सब कुछ एक तरीके से, सर सीधी सीधी बात है, अगर कोई भी दुकानदार है, कोई भी बिजनेसमैन है, तो वो तो अपने प्रॉफिट के बारे में बात करेगा, वो किसी के भले के लिए थोड़ी बात कर रहा होगा। वो ये तो नहीं, अब कोविड के टाइम पे कितने बिजनेसमैन, कितने बिजनेस ग्रुप्स ने क्या क्या हेल्प करी है आम आदमी की, रादर कुछ ऐसे इंडिया में भी और जगह पे भी ये देखा गया है कि जो अपने आप लोगों ने अपनी कम्युनिटी बना बना के और सोसाइटी बना बना के लोगों की इंडिविजुअली हेल्प जितनी ज्यादा कर दी, इन ग्रुप्स ने, जितने भी कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, इन्होंने कोई पर्टिकुलरली ऐसा कोई हेल्प नहीं किया जिसको कहा जाए कि हाँ बहुत बड़ा हेल्प किया। अगर ये चाहते तो अपने स्टोर्स खोल सकते थे, हर शहर में इनके स्टोर्स हैं, और उनको ये अलाउ कर देते कि आप इतने लोगों को सामान दे रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव इनके हर शहर में हैं, लोगों को खाना आराम से मिल सकता था, लोगों की ट्रेवलिंग, सर कितने लोग मर गए हैं वहां से वहां तक जाते हुए। पर कॉर्पोरेट सर क्यों किसी के बारे में सोचेगा, उसको बिजनेस करना है। Each corporate have a business model, right? हर corporate का ये होता है कि फंडा होता है, like जो actually I'm a big fan of Tata Industries. I think those are people जो कुछ थोड़ा सा कुछ कम्युनिटी के लिए करते हैं। तो वो हो सकता है कि वो नंबर 1 कंपनी ना हो, लेकिन उन्होंने जो मैं उनकी जितनी भी उनके बारे में मैंने पढ़ा है, वो उनसे लग रहा है कि वो उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया, एजुकेशन के बारे में सोचा और ट्रस्ट भी बनाए हुए हैं। लेकिन जो कुछ और बिग कॉर्पोरेशंस हैं, वो इस बारे में जी। अभी सर इसी बारे में थोड़ा सा मैं और फर्दर लूं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं अनुराग श्रीवास्तव जी। They called Canadian Prime Minister remarks on farmers' protest that they are ill-informed and unwarranted. Do you agree that anyone who doesn't belong or doesn't live in India has no right to speak about so-called Indian issues? Yeah, I guess they should ask Modi ji first. अगर मोदी जी ट्रम्प के बारे में ट्वीट कर सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, अगर कोई प्लेन गिर रहा है उसके बारे में वो स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो ट्रूडो साहब को भी उन्होंने, मेरा ख्याल कोई फॉर्मल लेटर तो शायद लिखा नहीं है, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक पॉलिटिकल स्टंट ही किया है, तो वो उनको भी स्टंट करने का हक है। अगर मोदी जी अपनी वोटें को सॉलिडिफाई करने के लिए ये ट्वीट कर सकते हैं, तो ट्रूडो साहब भी अपनी वोटें ही सॉलिडिफाई कर रहे हैं। आई एम नॉट बिग फैन, पेपर उन्होंने कुछ किया है, चलो ठीक है, वो उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की, उन्होंने जो सोशल मीडिया पर ट्वीट डाली है। एक्चुअली मुझे यह लग रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इससे ज्यादा करना चाहिए, ताकि वो जो 100 किसान ऑलमोस्ट वहां मर चुका है, वो शहीद हो चुका है, और उनके परिवार जो हैं वो कनाडा में भी रह रहे हैं, इंडिया में भी रह रहे हैं। सो इट्स नॉट रियली फन जब हम देखते हैं कि हमारे परिवार के मेंबर, हमारे दोस्तों के पिताजी, माताजी, भाई बहन जो शहीद हो रहे हैं, तो दुख होता है। सो वो दुख जो है वो हमारे जो राजनीतिक हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, तो वो इतना तो कर सकते हैं कि एक ट्वीट छोड़ सकते हैं जो एक सोशल मीडिया पर जा सकती है। सो इसलिए वी आर थैंकफुल जितना भी कोई भी पॉलिटिशियन कर रहा है। आई थिंक इन यूके जो है वो इससे भी ज्यादा कर रहे हैं, जो उन्होंने मेरा 100 मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने सिग्नेचर करके वो सबमिट किया है उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास। सो वी आर थैंकफुल एनीबॉडी जो भी हेल्प कर रहा है। असल में तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात कि मोदी जी इसको इतना लमका क्यों रहे। दैट इज अ सैड सिचुएशन, दे शुड हैव रिजॉल्व। सर आपको क्या लगता है क्यों ऐसा, आपकी तरफ से क्या, आपको क्या लगता है कि मोदी जी क्यों इसको इसका इतना कहावत है, उनको सह की नहीं उनको पह की है। सो आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड पंजाबी और नॉट,
दे आर नॉट, वो इस बिल के बारे में कंसर्न नहीं है। वो कंसर्न है कि जो मैंने और काम किए हैं, चाहे वो उनको ठीक समझें चाहे गलत समझें, कुछ लोग उनको ठीक कहेंगे कुछ गलत कहेंगे, वो कहते हैं कि अगर हमने किसानों की बात मान ली तो दूसरे भी कहेंगे कि हमारी भी मानो। पर सोचना तो उनको ये चाहिए कि अगर उन्होंने गलती की है तो उस गलती को करेक्ट करना चाहिए। और इस बिल की मांग तो कोई भी नहीं कर रहा। आमतौर पर जो जनता है, वो जो गवर्नमेंट्स हैं, वो बिल वो लाती हैं जिनकी मांग होती है। इस बिल की तो मांग है ही नहीं। किसान तो कह रहे हैं कि हमें चाहिए ही नहीं ये बिल। वो तो कह रहे हैं कि नो नो नो, हमने तो आपको देना है, जरूर देना है। सो दैट इज द फैक्ट। जी। तो सर, वैसे भी एक बात तो ये मानी गई है कि नेता अगर अपनी गलती को स्वीकार कर ले, या कोई भी आदमी जो अपनी गलती मानता है, तो गलती मानने से आदमी को बड़प्पन दिखता है, ना कि उसका छुटपन। तो मेरे ख्याल से तो अगर कुछ गलती कोई भी करता है तो उसे मान लेनी चाहिए। सर, अभी गलती और ना गलती के बारे में अगर हम बात करें कि मोदी जी के बारे में लोग बाग मानते हैं कि वो गलती कर ही नहीं सकते। बहुत सारे फॉलोवर्स जिनको कुछ लोग मोदी भक्त बोल देते हैं। सर, आपको क्या लगता है उनका? बस मैं अभी शॉर्ट में ही रखूंगा सर, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस मेरे को आप एक इस बारे में और बताइए कि जो वो सबसर्वेंट्स हैं नेचर में, या उनका ब्रेन वॉश हो चुका है, या आपको क्या लगता है कि उनको गलत मिस इन्फॉर्म्ड हैं वो उनको? क्योंकि अगर हम ये कहें कि वो मिस इन्फॉर्म्ड हैं, तो उनको जब भी कोई चीज बताई जाती है तो दे सेड इट्स अ कॉन्स्पिरेसी, इसके पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, ये खालिस्तान समर्थक हैं, ये नक्सलाइट्स हैं, ये अर्बन नक्सलाइट्स हैं। तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके दूसरे को वो सुनना बंद कर देते हैं। और सर, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब तक हम बहस कर रहे होते हैं, आर्गुमेंट के दौरान हम केवल अपनी बात बोल रहे होते, दूसरे की सुन नहीं रहे होते। तो उनसे अगर आर्गुमेंट करने की बात भी आती है तो ये देखा गया है कि वो दूसरे की सुन ही नहीं रहे होते, वो केवल अपनी बोल रहे होते हैं। आपको क्या लगता है सर उनके बारे में कि वो प्रोपेगेंडा की वजह से ऐसा हुआ है, या वो सबसर्वेंट्स हैं, या क्या? सर, ऐसा क्या आप उनके बारे में बात करें? जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, किसी भी कंट्री में है, उसमें क्या होता है कि देयर आर कुछ परसेंट उनके परमानेंट वोटर्स होते हैं। There are, like every party have about 20% of their fixed vote and support, जो चाहे वो कुछ भी कर दे पार्टी, वो उनको लगता है कि वो गलत नहीं कर रही है। और जब गवर्नमेंट चेंज होती है, लाइक से अगर 30% ईच, दो पार्टीज हैं, 30% पार्टीज उनके डेडिकेटेड वोटर हैं, तो जो 60% हो गए, जो मिडिल वाले 40% हैं, वो गवर्नमेंट चेंज करते हैं। सो रियली दैट्स व्हाट विल चेंज। जो आई डोंट थिंक वी कैन इवन, जो 30% उनके फिक्स्ड वोटर हैं, उनको हम चेंज कर ही नहीं सकते। एक तो ये है कि वो अपनी चॉइस का मीडिया बात करते हैं, जो कंट्रोल्ड है, वो दूसरे आपके चैनल को वो देखें भी नहीं, और किसी और के जो चैनल्स हैं ना, जो स्मॉल इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं, उनको उन पर कोई अटेंशन भी नहीं देते। वो तो जो ZTV है, जो मोदी जी का मीडिया है, जिनको हम गोदी मीडिया बोलते हैं, वो सिर्फ उस मीडिया को बात करते हैं और वो उसी की बात सुनते हैं। इसलिए अगर आप 200 बार किसी सच को भी झूठ बोलोगे, तो वो उनको वो जो है वो सच भी लगने लगेगा। So that is the problem, I think, there, where and then the small segment of them are maybe under the name of religion. They are divided with the fundamentalist religion ideology. वो ये समझते हैं कि मोदी जी ने हमें इस हमारे धर्म को आजाद करवाया, बट धर्म का कोई एक जो धार्मिक स्थान बना देना, वो धर्म नहीं है। धर्म की आइडियोलॉजी को आगे लेकर आना, उसका जो प्रसार करना है, वो धर्म होता है। उसमें जो भी भगवान राम की शिक्षा है, जहाँ जो गुरु नानक देव जी की शिक्षा है, जहाँ प्रोफेसर मोहम्मद जी की शिक्षा है, अगर उसको हम आगे पेश करते हैं तो वो धर्म का प्रसार होता है। ये धर्म का प्रसार नहीं है कि जो एक कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म के धार्मिक स्थान को मिटा दो, तोड़ दो, हटा दो। अगर कोई भी हटाता है तो मैं समझता हूँ कि वो धार्मिक नहीं है।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर, तो जो यूथ है जो हमारे को सुन रहा है, बेसिकली हमारे को इंडिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन यूथ की है अभी, और वही चेंज लाने के लिए जिम्मेदार भी है इस देश के अंदर, चाहे वो किस भी तरीके का चेंज आए। यूथ बहुत अच्छे से पार्ट प्ले कर रहा है, कई बार गलत हो जाता है, कई बार सही हो जाता है, दैट डजंट मैटर उसके अंदर, लेकिन यूथ का एक बहुत बड़ा रोल है। सर, आपका यूथ के लिए, मतलब हम जानना चाह रहे हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया के यूथ को, उसको क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि आप अगर इंडिया में होते तो आप क्या कर रहे हैं? हाँ, आई थिंक यूथ को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी देख करके जो भी देश का अच्छा भविष्य सर्च सकती है पार्टी, उनको एक तो जो धर्मनिरपेक्षता जो है वो लानी बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी धर्म के पीछे भागेंगे, और जैसे मैंने पहले बोला है कि वो एक धर्म के, हम रोज सुबह जाते हैं, रूटीन रखते हैं, उसके में हम प्रेयर करते हैं, लेकिन उसमें उस प्रेयर में बताया क्या गया है उसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि मैसेज क्या है उसमें। मैं जो यहाँ पर हमारी जो सिख भाई बहन है उनको भी मैं बोलता हूँ कि कुर्बानी पढ़ो लेकिन उस पर अमल जरूर करो। जो है, अगर जब मैं कॉलेज में था तो मैं हवन में भी जाता था, क्योंकि मैं डीएवी कॉलेज से पढ़ा हुआ, और वहाँ पर हम हॉस्टल में रहता था। हमारे हॉस्टल में शाम को जो हवन होता था मैं वहाँ पर जाता था, और आर्य समाज के जो भी गायत्री मंत्र है उसमें भी बहुत ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सो वो उसमें भी वही मैसेज है जो गुरबानी में है, सबकी भलाई की बात की जाती है। और थिंक, सबकी भलाई करने के बारे में सोचो, अपने बारे में भी सोचो, पहले अपने बारे में सोचो, फिर अपने भाई बहनों के परिवार के बारे में सोचो, फिर नेबर्स के बारे में सोचो, फिर उसकी नेक्स्ट गली में जाओ और जिसकी हेल्प करो उसको एनकरेज करो कि वो भी ऐसे ही करे। एंड दैट इज, आई थिंक दैट विल गो लॉन्ग वे। अगर हम एक दो, हर इंसान एक या दो इंसानों की हेल्प कर देता है तो वो बहुत दूर जाता है। थिंक बहुत बड़ा काम है। अगर सभी इसी तरीके से चले तो सभी का ही भला होएगा, सब लोग एक दूसरे की अगर हेल्प करने शुरू करें। अभी तो सर 26 जनवरी आने वाली है, और किसान परेड के बारे में भी सुना जा रहा है कि किसान कह रहे हैं कि हम गणतंत्र दिवस पे और राजपथ पे परेड करेंगे। गवर्नमेंट ने पूरी बैरिकेडिंग और सब कुछ कर दिया है, तो मैं तो प्रे यही करूंगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि कुछ भी अगर गलत होता है तो मरेगा तो इंडिया ही, चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो, मरेगा तो इंडिया ही। तो मैं तो यही प्रे करता हूँ सर, आपसे भी यही गुजारिश होगी सर कि आप भी अपनी तरफ से सब लोगों को, जितने भी आपके जानने वाले हैं, उनको ये मैसेज, हम भी इससे यही कन्वे कर रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं। जो मेरी नॉलेज है उसके अनुसार वो जो पैरामीटर रोड है दिल्ली की, उस पर वो पेड़ करना चाहते हैं, वो दिल्ली में नहीं करने चाहते हैं किसान को। वो ये गवर्नमेंट को शो करना चाहते हैं कि इतने किसान जो हैं वो मांग कर रहे हैं, और उनका कोई निशाना जो है वो कोई किसी भी कैपिटल जो है वहां पर जाने का नहीं है, ना लाल किला पर जाने का है। उनका तो पेरीमीटर पर अरे जो दे आर एक्सपेक्टिंग 2 लाख ट्रैक्टर्स जो हैं वो वहां पर आएंगे और वो उस पैरामीटर पर अपना चक्कर लगाएंगे। और उधर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है उनको एंट्री के लिए, तो वो शायद उसको भी मना कर रहे हैं, उसको भी ना होने दें। देखते हैं सर क्या सीन बनता है। सर आपसे सर बात करके बहुत अच्छा लगा। इट्स रियली वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सर। और सर आपसे एक चीज की और एक गुजारिश है कि अगर कुछ समय बाद हम आपसे अगर कुछ और क्वेश्चंस हमारे जैसे आते हैं तो हम दोबारा आपसे एक बार और समय चाहेंगे, आपसे इजाजत चाहेंगे उस चीज के लिए, तो क्या आप आके भी दे पाएंगे हमारे को समय? एनी टाइम, जस्ट सेंड मी अ मैसेज। आप जानते हैं कि मेरे से बात कहाँ करनी है। सो नाइस, सो नाइस। थैंक यू, थैंक यू योर लिसनर्स फॉर वाचिंग, एंड दैट्स वेरी नाइस ऑफ देम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। नमस्कार सर।